Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today I'm going to share one success story. So let me read this success story from her message itself. So hello ma'am, please share my success story. Please do not share my name as I don't want to be found out as my name already appears in the merit list. So hello everyone, this year I have cracked both RRB PO exam and RRB clerical exam. Okay, so ये banking के दो exams हैं, रीजनल रूरल बैंकिंग का, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक है क्लरिकल. तो इन्होंने दोनों ही एग्जाम क्रैक करा है. So I have been trying to crack bank PO and clerical exam for a long time. I'm 27 plus now, and after my masters, I have been continuously trying to get a job. But this year I finally got it. Not one, but both the exam success. For the last couple of years, I was working hard, but I was failing every time. I was appearing in all sorts of exams, bank, insurance, and everywhere it matched my qualification, but I failed each time with a big margin. I was devastated. I did not know what was wrong. Honestly, if I say, I did not want to see what was wrong. I had a big ego that led me think that I was doing everything perfect, but there must be something wrong with my fate, my luck, or maybe people are corrupt. Maybe they are accepting money and passing some selected people. I basically thought all sorts of garbage just to justify my big ego that I was doing everything perfect. It's only others' fault or something unseen which is not in favor of me. That's why I'm not passing the exams. Okay. So just note down this particular point very clearly because this particular thing happens to many of us whenever we are trying to manifest some goal. We have been working for it, लेकिन वो चीज नहीं हो रही है. तो हम हमेशा ही ना हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को पकड़ लेते हैं कि ये चीज सही नहीं है, वो आदमी सही नहीं है. ठीक है. So she has very honestly like accepted this fact. So, however, I did not have this clarity on my ego being the shield for my own weaknesses, my negativity lurking inside until I started working with ma'am. I liked it very much that ma'am told me what she believed to be true, but not try to say yes to everything I said. Initially, it was a blow to my ego that how come ma'am was so blatantly telling me the unfiltered truth and not trying to please me like most people do to keep clients. Anyways, I just lucked out finding her last year. Ma'am narrowed down my focus on exams, not applying for 20,000 exams at the same time, but apply for one category of selected exams and master the game in it. Okay. जैसा कि इन्होंने पहले बताया कि she was applying for all sorts of examinations, जो कि उनके क्वालिफिकेशन मतलब रहता है ना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहना चाहिए या फिर 60% होना चाहिए समथिंग लाइक दैट. सो वट एवर वॉज मैचिंग हर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया शी वॉज अप्लाइंग फॉर एवरीथिंग. ठीक है. सो ये चीज इनको बंद करवाना पड़ा. ठीक है. So I was appearing in mocks, but I was too lazy to analyze. Ma'am pushed me for that as well. She gave me a routine to follow. I mostly followed through. The routine greatly helped me to keep my manifestational practices along with my studies. She combined it beautifully. I also had the time for myself in my routine. I was not looking like a zombie just because I was appearing for exams. So yeah, because girls do have this thing कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब से दिखने लग जाओगे ना तो आपका मोटिवेशन पे उसका थोड़ा इफेक्ट होता है. सो whenever I'm trying to design a routine for a woman who is suppose trying to manifest a goal related to exam or something like this, I always try to allocate some time for the self care so that she doesn't look like a zombie in the process. Then she writes, I did not have too much of a marriage pressure at home, but I was single for some years because I was focused on manifesting or cracking an exam success first. But my singlehood used to bother me because my other friends were getting married, my cousins were getting married. So although there was not that much of like too much pressure, but I was uh, distracted at times because of my own loneliness thoughts. So previously I used to go in deep spirals during those days, but the WhatsApp coaching really benefited me as ma'am literally rescued me each time I was in a spiral. So yes, that also saved a lot of my time, my energy, which I used to waste earlier. I had some family issues as well. I have two big brothers, their wives, their own families, and they have issues with my mom dad. मतलब everyone सब लोग एक साथ रहते हैं एक बड़े घर पे. ठीक है.
So it was kind of a mess at times, and that used to distract me from studies. Plus, as ma'am mostly mentions, most girls are caught up in household chores, and that was 1000% true for me. Doing household work used to feel like accomplishment each day, but I was losing out on my real target. Surprisingly, yet, my ego found a way to protect itself by saying that I was doing everything perfect, but I was actually gaslighting myself, and I did not even know that. That's the whole reason why I failed and wasted so many years after my masters. I was talented, but I was distracted. Today, I can proudly accept my mistakes because I was really making them. Ma'am was quite thorough, quite persistent, and quite strict. She had answers to my questions. She had solution for my problems. She was really godsend to me. Today, I'm here to share that I have cleared both the exams this year. I have chosen PO over clerical. इन्होंने दो ही पास किया है ना, probationary officer and clerical. So she has chosen the PO exam. She's going for the officer rank. So my document verification is also completed, and I'm waiting for my final appointment. So it feels like a dream, but it was more of a transformation. I learned too many things than just exam topics. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. I did my part of sharing the good word. Bye. So ये जो स्टोरी है, इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में एंड बहुत ही क्रिस्प वे में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें करी हैं. कुछ चीजें मैं हाईलाइट करूंगी, ठीक है, सो दैट आप भी कुछ कुछ चीजें समझ पाओ. फर्स्टली देखो, ये बहुत टाइम होता है, वेदर यू आर वर्किंग ऑन ए रिलेशनशिप, वेदर यू आर ट्राइंग टू क्रैक एन एग्जामिनेशन, वेदर यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है. तो लेकिन आपको बहुत बार मतलब फेलियर का अगर सामना करना पड़ रहा है कोई भी एरिया में, सो मोस्टली हम ना हमारे वो जो वल्नरेबल साइड है, बिकॉज वेन एवर वी फेल एट समथिंग वी डेफिनेटली गेट हर्ट. तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं, अगर हमारा इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा एक वल्नरेबल स्टेट में है ना, सपोज अगर किसी को बचपन से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला हुआ है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में उसका इनर चाइल्ड वाला चीज है, तो वो ना फिर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बन जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. टू मच ऑफ इगोइस्टिक टू इवन एक्सेप्ट दैट दे हैव मेड मिस्टेक्स, ठीक है, एंड उसको ठीक कर सकते हैं. अभी इसमें दो चीजें हैं. जब हम एक्सेप्ट करेंगे अपने मिस्टेक्स को, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग इनटू गिल्ट. देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट पार्ट्स. वन इज यू बिकम गिल्टी, यू गो इनटू दैट डाउनवर्ड स्पाइरल, ठीक है, कि अरे यार मेरे से तो कुछ नहीं होता है, आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, मैं तो बेकार हूँ एंड ऑल दैट, ठीक है. यू गो इनटू सम काइंड ऑफ ए विक्टिमहुड, सम काइंड ऑफ ए नेगेटिविज्म. दूसरा चीज ये है कि यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैंने मिस्टेक करी है, शायद आपको पता है कि क्या करी है, शायद आपको नहीं पता है कि क्या करी है, but you are willing to take the responsibility of correcting them. So these are two different mindsets, ठीक है. So she was also trying to do the same. She was trying to protect her ego by saying herself कि नहीं मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ, सामने वाला जरूर ब्राइब ले रहा होगा और वो कोई सिलेक्टेड लोगों को ही वो मतलब ले रहा होगा एग्जाम की जो कम्युनिटी है, ठीक है, या फिर मेरा ही किस्मत खराब है, विक्टिमहुड, ओके, मेरा ही किस्मत खराब है, मैं ही अनलकी हूँ, मेरा ही सिलेक्शन नहीं होता है, मेरे ही लाइफ में कुछ नहीं होता है, समथिंग लाइक दिस, ओके. सो दीज आर ऑल कम इनटू दिस कैटेगरी जहाँ पे हम विक्टिमहुड में जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एक वल्नरेबल स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है. सो ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है. दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ ईगो ओनली. समटाइम्स इट्स मेकिंग यू सुपीरियर कि मेरे से तो कोई गलती होता ही नहीं है, मैं तो हमेशा ही 1000% एफर्ट करता हूँ फिर भी नहीं होता है. ये एक तरीके का ईगो. ये दूसरी तरीके का ईगो है इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, कि मेरा तो कुछ भी नहीं होता है, मैं तो कितना भी ट्राई करूँ, लोग ही खराब है, दुनिया ही खराब है, ठीक है, दुनिया में सब लोग ब्राइब ले रहे हैं, दुनिया में सबका सब कुछ हो रहा है, मेरा ही अनलकी है, मेरा ही एक्सेप्शनली खराब है सब चीज. तो ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. सो बोथ आर ईगो. वेदर यू आर फीलिंग इन्फीरियर सुपीरियर, यू आर इन ईगो. दैट्स नॉट गोइंग टू टेक यू अहेड इन लाइफ. सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू एटलीस्ट हैव दैट ऑनेस्टी विथ योर सेल्फ एंड द पर्सन यू आर वर्किंग विथ. जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहा है दुनिया के सामने भले ही आप कुछ भी करो, ठीक है, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड ऑल्सो द पर्सन विथ whom you are working, from whom you are taking the guidance and all that, कि या मेरे से गलती हुई है एंड आई एम विलिंग टू वर्क ऑन दैट. सो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. दूसरी चीज ये है, इन्होंने जैसे कि ये चीज भी कहा कि इनके घर पे प्रॉब्लम था, ठीक है, परसिस्टेंट इशू था, फैमिली प्रॉब्लम, मतलब इनकी भैया भाभी, स्पेशली भाभी लोगों के साथ इनके माँ बाप का बनता नहीं था, तो एवरी टाइम आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ठीक है. सो दैट वाज अ फैमिली इशू एंड शी हैड अ लॉट ऑफ टाइम इन लिविंग इन दैट टॉक्सिसिटी,
ठीक है। इसमें इनका बहुत एनर्जी खराब होता था, इनको बहुत बुरा लगता था, या सैड जोन में चले जाते थे। इनकी मम्मी पापा रोते थे तो वो देख के और इनको बुरा लगता था, ठीक है। वो प्रेशर फील करते थे अपने आप में, मैं क्या मैं करूँ कि अपने माँ बाप को कुछ ये वो करूँ, मैं उनको अच्छे से रखूँ, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग. The second thing was she mentioned that she used to also feel lonely because of her relationship thing, क्योंकि वो सिंगल है काफी सालों से, वो सक्सेस भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही है, सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रही है किसी एग्जाम में, और ऊपर से कई सालों से वो लाइक सिंगल भी है, तो वो पर्सनल लाइफ में भी वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, उसका भी एक फ्रस्ट्रेशन था, ठीक है। सो ये सारी चीजें मिला के, और एक चीज भी इन्होंने मेंशन करी है, जैसे कि ये मॉक टेस्ट करती तो थी लेकिन उसको एनालाइज नहीं करती थी, तो फिर क्या ही मतलब है मॉक टेस्ट करने का, ठीक है। इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग वट एवर इज योर स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट, आपका एक्यूरेसी, आपका स्पीड, ये सब चीजों पे अगर आप काम ही नहीं करोगे तो फिर मॉक टेस्ट देने का क्या मतलब है, कार्टून सीरियल देखो फिर, ठीक है। तो शी वॉज हैविंग ऑल दिस थिंग्स एंड शी वॉज ऑनेस्ट एनफ टू एक्सेप्ट दिस, ऑनेस्ट थी इसीलिए उनका प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में ना दूसरों लोगों के साथ ऑनेस्ट हो या ना हो, सबसे पहले खुद के साथ ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वो चीज को समझा, ठीक है, बिकॉज शी वॉज कंटिन्यूसली, शी वॉज लाइक इनिशियली, जैसा इन्होंने कहा कि व्हेन आई वाज टेलिंग हर ऑल दिस थिंग्स, शी वॉज काइंड ऑफ फेल्ट लाइक आई वॉज ब्लोइंग हर ईगो, ठीक है। तो शी हैड दैट फेस फॉर द इनिशियल 1 month 1.5 months, शी वॉज नॉट रेडी टू इवन एक्सेप्ट कि इनके साइड से भी कुछ गलती हो सकती है। फिर जैसे जैसे इनको समझाया गया कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव इन योर प्रिपरेशन, ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को ना मतलब एक जगह पे करना पड़ेगा, यू नीड टू लाइक कंट्रोल योर सेल्फ गोइंग इन टू दो स्पाइरल्स एवरी थर्ड डे और फोर्थ डे, मतलब 2 दिन पढ़ाई करो फिर 2-4 दिन स्पाइरल में रहो, नेगेटिविटी जोन में रहो, वो सब करने का कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू बी वेरी मच फोकस, सारी एनर्जी को इकट्ठा करके यू हैव टू बी फोकस्ड। सो ये सारी चीजें इन्होंने करनी स्टार्ट करी, एंड देन जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ कि घर के काम करने को भी इन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज को बताया कि घर का काम करना भी लगता था कि मैंने कोई चीज अचीव करी है, मैंने कोई चीज अकम्प्लिश कर लिया, बिकॉज यस इट डज गिव यू सम काइंड ऑफ ए हाई, ओके। आप एक चीज फॉलो करोगे, कोई एक सीरीज देख रहे हो आप, सपोज उसका 8-10 एपिसोड है 1-1 घंटे का, ठीक है। सो वो देख करके ना अभी आप जब खत्म करोगे उसको, यू विल फील अ सर्टेन काइंड ऑफ ए हाई कि हाँ कंप्लीट कर लिया, ओके। आपको घर का काम करना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करना है, घर का सारा खुद से करना है, यू विल फील सर्टेन काइंड ऑफ एन अकम्प्लिशमेंट। लेकिन वो जो अकम्प्लिशमेंट का फीलिंग है, क्या वो कोई काम का है? यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी प्रैक्टिकल विथ योर सेल्फ। आपका गोल है एग्जाम क्रैक करना, आप झाड़ू पोछा बर्तन करके या फिर भैया भाभी का बच्चा पाल के, ठीक है, बच्चे को सुला के आपको हाई मिल रहा है, सो देन यू आर टेकिंग योर डोपामिन रिलीज फ्रॉम समवेयर एल्स वेयर इट्स नॉट इवन वर्थ हैविंग इट, ठीक है। सो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया कि वी वर मोस्टली ऑन द व्हाट्सएप कोचिंग फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि देखो जब भी आपका गोल थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज में रहता है ना, तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि सेशन लेने से ज्यादा व्हाट्सएप कोचिंग इज द वन विच एक्चुअली हेल्प्स यू, बिकॉज हम ऑलमोस्ट एवरी डे वीक में 3-4 बार 5 बार तो हम बात करते ही हैं। तो उससे क्या होता है, यू स्टे ऑन ट्रैक। लेकिन सेशन में क्या होता है, फॉर 1 hour इफ यू हैव लाइक वेरी लाइक क्विक सोल्यूशन यू वांट टू समथिंग, यू वांट फॉर समथिंग, उसके लिए सेशन इज द परफेक्ट चॉइस। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, बहुत लंबा चलने वाला है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर से काम करना स्टार्ट किया था, सो इस साल इनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इनका प्रेपरेशन था लेकिन फोकस नहीं था, फोकस हर जगह पे था, ठीक है। सो ऐसा लॉन्ग टर्म चीजों के लिए व्हाट्सएप कोचिंग इज द बेस्ट थिंग टू हैव। उन्होंने रूटीन का भी मेंशन किया, समटाइम्स क्या होता है, वी आर ऑल ओवर द प्लेस, फिर हमें समझ में भी नहीं आता है कि किस टाइम पे मैनिफेस्टेशन करें, किस टाइम पे स्टडी करें, किस टाइम पे रेस्ट करें, किस टाइम पे अपना सेल्फ केयर करें। सो आई डू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। बिकॉज एवरी डे व्हेन यू वेक अप यू आर लाइक ए फुल बैटरी, ठीक है। लेकिन उस फुल बैटरी का जो एनर्जी है, आपको किस जगह पे कैसे क्या यूज करना है, क्योंकि आपको सब कुछ ठीक रखना है, आपका हेल्थ ठीक रखना है, अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखना है, अपना खाना वो सही रखना है, अपना सोशल सर्कल में आपको कितना क्या करना है नहीं करना है, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू डू, यू हैव टू फिगर आउट, ठीक है। एंड जो भी आपके इश्यूज हैं उसको कैसे आपको फॉर द टाइम बिंग आपको उसको थोड़ा स्टैंड बाय पे रख के जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके और आपको कैसे जाना है, बिकॉज यू सी प्रायोरिटाइजिंग 30 गोल्स एट वन टाइम, इट्स अ फेलियर का फॉर्मूला, ठीक है। सो कैसे आपको प्रायोरिटाइज करना है ऑन ए रेगुलर बेसिस, क्योंकि लोग इतना डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यू वोंट बिलीव, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सक्सेस स्टोरी एंड ऑल्सो सम आउटलाइंस दैट आई डिस्क्राइब्ड, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी इफ यू आर ऑन ए सिमिलर जर्नी। और अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं
तो आप मुझसे व्हाट्सएप कोचिंग ले सकते हैं, सेशन ले सकते हैं. यू कैन जॉइन द 5M पोर्टल इफ यू आर ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन व्हाट योर गोल इज. आप कोर्सेज भी ले सकते हैं. एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो यू विल फाइंड द लिंक टू माई वेबसाइट. एंड अभी ये वेबसाइट न्यू है एंड इसमें जो पेमेंट ऑप्शंस हैं, आई हैव गिवन ऑल द ऑप्शंस फॉर लाइक यू कैन चूज एनी ऑप्शन. आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, जो भी इज कन्वीनियंट टू यू. ओके. एंड अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के स्क्रीन में भी है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है. Right? And whatever courses I create, it will all be these all will be like available in my website in the courses tab. ठीक है. So मिलती हूँ मैं बहुत जल्द एक नए सक्सेस स्टोरी के साथ. I have got a number of success stories coming in जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है. So मिलती हूँ मैं आप सबसे एक नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में. Till then you take care and bye bye.